السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9th اسٹینڈرڈ اردو میں ہم حصہ نظم، پہلا کیا ہوتا ہے؟ حمد۔ تو آج ہم پڑھیں گے حمد۔ دیکھتے ہیں اسکرین میں۔ انسان عام گفتگو اور تحریر میں جو زبان استعمال کرتا ہے وہ نثر کہلاتی ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ نظم ادبی اظہار کی زبان کے استعمال کی ایک صورت اور شاعری کی ایک قسم ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں، یہ نظم کی یہاں پر تعریف بتایا ہوا کہ نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم ادبی اظہار کی زبان کے استعمال کی ایک صورت اور شاعری کی ایک قسم ہے۔ نظم مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے جنہیں نظم کی ہیئت کہا جاتا ہے۔ ہیئت یعنی ہوتا ہے حالت، قسم، اقسام۔ ہیئت نظم میں مصرعوں کی تعداد اور قافیوں کی ترتیب سے اپنی پہچان بناتی ہے۔ یعنی جو ہیئت ہوتی ہے نظم میں کیا کرتی ہے، یعنی نظم کی جو حالت ہوتی ہے وہ مصرعوں کی تعداد اور قافیوں کی ترتیب سے اپنی پہچان بناتی ہے۔ آگے نظم کی واضح پہچان یہ بھی ہے کہ اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، جیسے اس حصے کی نظمیں حمد، ایکتا کی آواز، میرا سفر وغیرہ۔ بعض نظمیں اپنے موضوعات سے بھی پہچانی جاتی ہیں، جیسے غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی وغیرہ، جن کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ یعنی سب نظم ہی کہلائے جاتے ہیں۔ ادبی اظہار کی زبان کے استعمال اور شاعری کی ایک قسم جو ہے وہ نظم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں، حمد، نعت، غزل، قصیدہ، مرثیہ، یہ سارے نظم ہوتے ہیں، لیکن ان کے موضوع الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو کہیں وہ اپنے مصرعوں کی تعداد اور قافیوں کی وجہ سے اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں حمد۔ جگن ناتھ آزاد اس کے شاعر ہیں۔ پہلی بات، ہم اپنے سروں پر اونچا آسمان اور اس میں چمکتے ہوئے سورج، چاند، ستارے دیکھتے ہیں۔ انہیں کس نے بنایا ہے؟ دن رات بدلتے ہیں، گرمی، سردی اور بارش کے موسم آتے جاتے ہیں۔ زمانے کے ان موسموں کو کون بدلتا ہے؟ پھولوں کی مہک اور پھلوں کی مٹھاس کا ہم مزہ لیتے ہیں۔ پھولوں میں مہک اور پھلوں میں شیرینی کون پیدا کرتا ہے؟ شیرینی یعنی مٹھاس۔ پھولوں پر منڈلاتی تتلیاں ہمیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، ان کے پروں میں رنگ کون بھرتا ہے؟ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ دریاؤں میں آب رواں، یعنی آب رواں آب یعنی پانی ہوتا ہے، رواں یعنی جاری ہونا، یعنی دریاؤں میں جو پانی کی لہریں ہوتی ہیں، آسمان سے برستی بارش اور سمندروں میں ہزاروں میل پھیلا ہوا پانی کس نے بنایا؟ یہ سارے کام انسان کے بس کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ پختہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین اور پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار اشیاء کو دیکھ کر آدمی حیران ہوتا ہے، اور اسی حیرانی میں بے ساختہ اس کی زبان اللہ کی تعریف کرنے لگتی ہے۔ بے ساختہ یعنی ایک دم دل سے، دل کے یقین سے کیا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ ذیل کی حمد میں شاعر حیرانی کے ساتھ قدرت کی نشانیوں میں خدا کے جلووں کو دیکھ رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جان پہچان جگن ناتھ آزاد کے بارے میں۔ جگن ناتھ آزاد دسمبر سن 1918 میں غیر منقسم پنجاب کے شہر عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے۔ غیر منقسم یعنی تقسیم نہیں ہوا تھا اس وقت جب ہندوستان پاکستان بٹوارہ نہیں ہوا تھا، تب کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے والد تلوک چند محروم اردو کے مشہور شاعر تھے۔ جگن ناتھ آزاد نے فارسی ادب میں MA کرنے کے بعد صحافی کی حیثیت سے اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ تو آپ یہاں دیکھیں گے صحافی یعنی کیا ہوتا ہے؟ اخباری کاروبار کرنے والے لوگ، جرنلسٹ وغیرہ۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ تقسیم ہند کے بعد وہ ہندوستان چلے آئے اور ماہنامہ آج کل کے نائب مدیر مقرر ہوئے۔ یعنی ماہنامہ جو مہینے کا نکلتا ہے اخبار، جیسے ہفتہ واری اخبار نکلتا ہے، انقلاب ہے، اردو ٹائمز ہے، اسی طرح سے ماہنامہ جو مطلب نکلتا تھا ایک مہینے میں، ماہنامہ کا نام کیا تھا؟ آج کل کے نائب مدیر مقرر ہوئے۔ سرکاری ملازمت سے سبکدوشی کے بعد، سبکدوشی یعنی
सुबुकदोशी होता है यानी फारिग होने के बाद। तो सरकारी मुलाजमत से फारिग होने के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के सदर के ओहदे पर फाइज हुए। उनके तकरीबन 15 शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं, जिनमें बैकरा, वतन में अजनबी और सितारों से आगे मशहूर हैं। ये 3 उनके जो शेरी मजमूए हैं, 15 में से ये 3 मशहूर ज़्यादा हैं। अल्लामा इकबाल के हयात व ख़िदमात पर तहक़ीक़ी और तनक़ीदी कामों की वजह से आज़ाद को इक़बालियात के माहिरीन में शुमार किया जाता है। इक़बाल और मग़रिबी फ़लसफ़ा उनकी अहम किताब है। यानी अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़िंदगी थे, उनके हयात व ख़िदमात पर आज़ाद, जगन्नाथ आज़ाद जो है, उन्होंने उन पर भी किताबें लिखी हैं, उन पर भी रिसर्च वगैरह किया है, काम किया है। तो उनके माहिरीन में, अल्लामा इक़बाल के माहिरीन में शुमार किया जाता है जगन्नाथ आज़ाद को। इक़बाल और मग़रिबी फ़लसफ़ा इनकी अहम किताब है जगन्नाथ आज़ाद की। 24 जुलाई 2004 को जम्मू में उनका इंतकाल हुआ। अब हम देखते हैं उनकी नज़म की तरफ। क्या कहते हैं शायर? रंगो बू तक तुझे देखूं कि ख़िज़ां तक देखूं, मैं तेरा हुस्न जो देखूं तो कहाँ तक देखूं, अपने माहौल में देखूं कि सितारों से उधर, तू ही तू मुझको नज़र आए जहाँ तक देखूं। शायर इस शेर में क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द और तारीफ़ बड़ी हैरानी से करते हुए शायर क्या कहते हैं कि ऐ मेरे रब, ऐ खुदा, मैं तुझे रंगो बू तक देखूं कि ख़िज़ां तक देखूं। यानी आप दुनिया में अगर देखें, कितने तरह के खाने पीने की चीज़ें हैं, कितने किस्म के फल हैं, उनका कलर अलग है, उनकी साइज़ अलग है, उनके रंग अलग हैं, उनका खुशबू अलग है, और इतनी सारी चीज़ें, इतने तरह के खाने, और सबका जायका अलग। और अल्लाह ने ज़बान, आप ज़बान पे गौर करें कि अल्लाह ने उस ज़बान को छोटी सी, मतलब जो गोश्त का टुकड़ा है हमारा ज़बान, उसमें ऐसा अल्लाह ने क्या रखा कि हर तरह के जायके को चख कर समझ जाती है, हर तरह के जायके का मज़ा ये समझ जाती है। तो ये अल्लाह की कुदरत है। तो उसी को शायर बयान करते हुए क्या कहते हैं कि मैं तुझे रंगो बू तक देखूं या ख़िज़ा तक देखूं। ख़िज़ा क्या होता है? पतझड़ के मौसम को ख़िज़ा कहते हैं, जिसमें पत्ते सारे झड़ जाते हैं। तो ये भी अल्लाह की कुदरत है कि एक बार पूरे पत्ते सूख कर झड़ जाते हैं हरे से, फिर वो पूरे सूख कर झड़ जाते हैं, फिर वापस से जब बारिश का मौसम आता है, हरियाली आती है, फिर वापस से नए पत्ते आते हैं, हरे भरे सारे माहौल हो जाते हैं। तो ये भी अल्लाह की कुदरत है कि रंग व बू तक तुझे देखूं कि ख़िज़ां तक देखूं, मैं तेरा हुस्न जो देखूं तो कहाँ तक देखूं। शायर अपनी हैरानी का इजहार करते हैं। अपने माहौल में देखूं कि सितारों से उधर, यानी अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने माहौल में, अपने अतराफ़ में, दुनिया में सिर्फ देखें तो हम उसकी नेमतों को गिन नहीं सकते हैं। इतनी सारी अल्लाह की निशानियाँ और सब कुछ मौजूद हैं। आप आसमान को देख लें, एक घर बनाने के लिए 4 सुतून की ज़रूरत पड़ती है, 4 पिलर्स लगाए जाते हैं, तब वो घर, 4 दीवार, वो छत रुकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा आसमान कि जहाँ नज़र डालो वहाँ आसमान ही आसमान नज़र आता है, और बिना किसी सुतून, बिना किसी खंबे के, बिना किसी पिलर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा आसमान खड़ा कर दिया, और उसमें कहीं भी कोई सुराख नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियाँ हैं। फिर अगर हम सितारों से उधर देखें तो कायनात में सिर्फ एक निज़ाम शमसी ही नहीं है जिसका हिस्सा हमारी ज़मीन है, बल्कि हमारा निज़ाम शमसी एक कहकशां का हिस्सा है, और ऐसी कई लाखों कहकशाएँ कायनात में बिखरी हुई हैं। तो शायर उसी की तरफ इशारा करते हुए क्या कहते हैं कि मैं अपने माहौल में देखूं कि सितारों से उधर, तू ही तू मुझको नज़र आए जहाँ तक देखूं। आगे, मौजे दरिया की कसम, बादे बहारां की कसम, तेरी रफ्तार को अब और कहाँ तक देखूं। मौजे दरिया यानी मौज यानी लहर होता है, दरिया की लहर। बादे बहारां, आपकी बुक में इसके मीनिंग दिए हुए हैं, मौसम बहार की हवा। तेरी रफ्तार को अब और कहाँ तक देखूं। अगर आप देखते हैं दरिया के किनारे, समंदर के किनारे, तो लहरें कितनी दिलकश होती हैं, या फिर वही लहरें जब अल्लाह और कुदरत का गज़ब नाजिल होता है तो वही लहरें बाज़ दफ़ा कहर बन जाती हैं। तो उसी की तरफ शायर इशारा करते हुए क्या कहते हैं कि मौजे दरिया की कसम, बादे बहारां की कसम, तेरी रफ्तार को अब और कहाँ तक देखूं। आज तक तुझको जो देखा तो यकीन तक देखा, अब तमन्ना है कि मैं तुझको गुमान तक देखूं। शायर क्या कहना चाहते हैं कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को
यकीन तक देख लिया, यानी कायनात में इतनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे आसपास, मुझे उन सारी चीज़ों पर यकीन तो है, लेकिन मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से जो मेरी सोच, मेरा दिमाग गुमान करता है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहाँ तक देखना चाहता हूँ। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत, उसकी कुदरत, उसको, उसके फ़हम, उसको समझ पाना हमारे गुमान से, इंसानों के गुमान से बाहर है। लेकिन शायर क्या कहता है कि मेरी तमन्ना है कि मैंने तो तेरी कुदरत की हर चीज़ पर यकीन कर लिया, तुझे यकीन तक देखा है, और अब मैं तुझे तमन्ना, गुमा तक देखना चाहता हूँ, ये मेरी तमन्ना है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी गुमा तक देख पाना, उसके हिकमत और कुदरत को समझ पाना हमारे गुमान से बाहर है। सुबह का नूर शफ़क़ शाम की, जुल्मत शब की, मैं तेरे हुस्न के 100 रंग कहाँ तक देखूं। सुबह का नूर, आप सुबह उठते होंगे फजर के वक्त तो देखें। शफ़क़ शाम की, शफ़क़ क्या होता है? शफ़क़ एक तरह की लाली, एक तरह की सुर्खी होती है जो सूरज जब सुबह निकलता है तो आप देखेंगे, और गुरूब आफ़ताब के बाद शाम को जब वो लाली नमूदार होती, वो सुर्खी नमूदार होती, उसको शफ़क़ कहते हैं। तो शायर उन चीज़ों को गिनवा रहे हैं कि सुबह का नूर, शफ़क़ शाम की, जुल्मत शब की, जुल्मत यानी अंधेरा, शब यानी रात का एकदम खटाटोप, एकदम डार्क, एकदम अंधेरा। तो ये जो एक तरफ नूर, एक तरफ एकदम अंधेरा, एक तरफ सुर्खी, इतने सारे मैं तेरे हुस्न के 100 रंग कहाँ तक देखूं। दिल की दुनिया में तो मैं तुझको बहुत ढूंढ चुका, अब तेरा हुक्म जहाँ तक हो वहाँ तक देखूं। शायर का जो दिल है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कायनात में बिखरी हुई तमाम निशानियों पर यकीन कर चुका है, यानी उनका दिल अल्लाह की तमाम चीज़ों पर, कुदरत की तमाम चीज़ों पर यकीन करता है। लेकिन अब शायर क्या कहते हैं कि मैं तुझे वहाँ तक देखना चाहता हूँ जहाँ तक तेरा हुक्म चलता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म तो कहाँ तक चलता है ये हमारा जहन गुमान भी नहीं कर सकता। क्यों ना कुर्बान तसव्वुर हूँ मैं आज़ाद के आज, नूर ही नूर नज़र आए जहाँ तक देखूं। शायर क्या कह रहे हैं इसमें कि क्यों ना, तसव्वुर यानी क्या होता है? तसव्वुर यानी होता है तस्वीर, सोच, गुमान। यानी देखो, बचपन में बहुत सारे बच्चों के ख्याल आते हैं कि हाँ अल्लाह ताला कैसे होंगे, अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो सोच है, ये तसव्वुर है। तो शायर क्या कहता है कि मैं ऐसी सोच और ऐसे तसव्वुर पे, जो अल्लाह की कुदरत का यकीन करता है, उसकी कुदरत पे एतमाद करता हो, उस पे कुर्बान हो जाना चाहता हूँ। और शायर आगे क्या कहते हैं कि नूर ही नूर नज़र आए जहाँ तक देखूँ। आगे चलते हैं खुलासा। इस नज़म में शायर ने खुदा की तारीफ़ करते हुए कायनात में बिखरी हुई उसकी निशानियों पर हैरत का इजहार किया है। खुदा की कुदरत सिर्फ रंगों और नखतों के मौसम बहार ही में नुमाया नहीं है। रंग, नखत यानी क्या होता है? खुशबू। नखतों के मौसम बहार ही में नुमाया नहीं है, बल्कि ख़िज़ा में भी खुदा की कारीगरी जलवागर है। शायर कहता है कि खुदा का हुस्न उसके आसपास के माहौल में भी है और सितारों से आगे भी है। शायर को हर जगह खुदा की कुदरत और हुस्न का जलवा नज़र आता है। शायर कहता है कि ए खुदा, मैं तुझे कहाँ कहाँ देखूँ। दरियाओं की मौजें, बहार के मौसम की फ़रहत बख्श हवाएं, फ़रहत यानी खुशी, यानी जब हवा, देखो अच्छी हवा जब आती है, ठंडी हवा समुद्र के किनारे, तो कितना खुशी होता है। तो उसी की तरफ इशारा करते हुए क्या कहते हैं कि बहार के मौसम की फ़रहत बख्श यानी खुशी देने वाली हवाएं, सुबह की रोशनी, रात का अंधेरा, शाम में नज़र आने वाले शफ़क़ के दिलकश नज़ारे, गोया तेरा हुस्न हर रंग में बिखरा हुआ है। शायर ने खुदा को अपने यकीन के मुताबिक देखा है और वो चाहता है कि अब उसे गुमान तक देखे, यानी उसकी कुदरत और हिकमत तो इंसान के गुमान से बाहर है, लेकिन फिर भी शायर की ये तमन्ना है, उसकी ख्वाहिश है। गोया शायर खुदा की उसकी अज़मत के साथ देखना चाहता है। शायर ने खुदा को अपने दिल की दुनिया में देखा, लेकिन अब वो उसे वहाँ तक देखना चाहता है जहाँ तक खुदा का हुक्म चलता है, और खुदा का हुक्म कायनात के हर ज़र्रे पर चलता है। शायर खुदा की अज़मत के उस तसव्वुर पर कुर्बान हो जाना चाहता है जिसके सबब उसे कायनात के हर ज़र्रे में खुदा की कारीगरी और हुस्न दिखाई देता है। उम्मीद है आप लोगों को नज़म समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इस नज़म के सवालात और जवाबात करवाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जो भी डाउट हो कमेंट में बताएं।